Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is product matrix. Before starting today's topic, we recap the last lecture. In our last lecture, we were discussing about configuration management, and we were discussing different steps or different layers of the configuration management. We started with version control, and it is a key activity, a key level of configuration management, and different concepts that are related to version control that we discussed. First one was the project repository. Project repository is in fact project database, and whenever we want to manage data or entities related to the project, definitely we need database. So project repository is the key element or the component of version control, and project repository must support two type of services. The first type of services are the traditional services of database management system, and the second type of services are specific to the software engineering environment. So project repository, with project repository we also need a version management capability, and version management capability is a key task or activity of the version control. Whenever different changes are accommodated, so based on those different changes, different versions are created. So version control system is basically to keep those all different versions or configurations of different components that are related to that specific product. So another key function of version control is make facility. What does it mean? That we should be able to construct the software based on the different configurations. We may say that we should able to construct the software based on different versions of the components on some specific time. So another key facility is issue and bug tracking that is provided by the version control. And what does it mean? That whatever issue or bug is associated with some specific component, so version control system must support us the tracking system. We should have the descriptive information about the issue or the bug, and whatever is related, whatever are the related components with that specific component, we must handle those or track those objects as well, or at least the information about that all relevant components, so that we properly track whenever we need it. And second key system or key part are the layer of configuration management system or configuration management process that we discussed was change control. Change control is again related to the management of change, and we need a change control board, a change control authority. We said that it is like a configuration management scenario. In this group, four key stakeholders are involved. The first one is project manager, and project manager is the sole responsible of the project, and his or her key interest is to complete the project in timely manner. So that I mean, project manager is the key member of configuration process when we are specifically talking about the change control. And then the second key member is configuration manager, and configuration manager is responsible of all configuration related activities, and he has to manage all the related issues and the processes of the configuration process. And then third key stakeholders are the software developers, software engineers, who are involved in different
development activities. So their task is to do their job effectively and communicate and coordinate efficiently among themselves. If they properly communicate, then issues related to the changes will be like somehow minimized. But if there is no effective communication, then the effect of change will be maximized. So fourth key stakeholder of this change control board or change control authority is the customer, and customer is actually responsible for the formal change request if the product is delivered. So whatever bug or defect is there, so customer should report it, and then through formal procedure or the process of change, and we discussed it in detail last time, that how change request converted to the change report and then change order, and then finally configuration audit, that is another step of the configuration process or the configuration system. And configuration audit actually complements the technical reviews. Technical reviews are we discussed in detail in our earlier lectures, but here we are discussing, we are interested more in a configuration audit. And when change is made in that document, in change order, we also highlight the audit criteria, and so based on that audit criteria, we again evaluate that specific component, that all the mentioned criteria in that document is followed. And then the next key step or the level or the layer of configuration process, the final layer, that is the status reporting. Whatever is done, that must be reported and must be communicated to all stakeholders. So we generate the status reporting entries. We also generate a log report that contains multiple reporting entries, and it is actually the mechanism to keep our all stakeholders updated about the changes. And then we discussed configuration management for web applications, and we said that change is more frequent in context of web application. So we need to customize the configuration process for web applications. The key issues related to web applications that we discussed in our last lecture, the first one was the content, and content are in fact variety of data that when we are dealing with the web application. So we have graphics, we have audio files, we have video files, and definitely the text. So changes related to the content are very frequent, so how to deal with those changes. And then secondly, we discuss people, means web developers. Sometimes web developers have no background in software engineering, so they are not well aware of configuration process, how to educate them, and what are the key activities that can be incorporated in this web development process. So we discussed some key concerns. And then the third issue is the scalability, and scalability means that if we have a small size web application and if change occurs, then it is no problem. But if we have a large scale application, in large scale application, if there is no proper change control system or configuration process, then definitely its effect will be quite serious. And the fourth key issue was politics, and politics mean that in organizations there is always politics, and politics related to the web applications. We discussed some key questions related to this issue, that who is responsible for the web application, who is responsible for the accuracy of the contents, how the change will be made in web application, and
what will be the cost of the change and who will be the responsible. So these are the all key questions that are related to the politics of organization's politics. And the concluding remarks were that we need a balanced approach towards configuration management for web application. It shouldn't be too informal or formal. So balanced approach is good for all kind of web applications. Now we start today's topic, that is about product metrics. When we talk about engineering activities are quantitative in nature in general, and measurement is the key element of any engineering process. So when entities are quantitative, we can actually quantify them, then we can also measure, and measurement is related to the quality assessment. If we want to assess the quality, there are different ways to assess the quality that are subjective in nature, but if we want to assess the quality in terms of number, then definitely we need some quantitative measures. So in other engineering disciplines, we have a lot of predefined or very well formed formulas and theories, so that using those formulas and theories we can actually measure and we can actually predict about the quality and so on. But when we talk about software engineering is somehow different than other engineering disciplines, because software engineering is quite young as compared to other engineering like civil engineering or some other engineering domains. So the way to measure, way to quantify or assess the quality in software engineering is somehow tricky. So when we talk about the software engineering application, it is often difficult to quantify or measure the quality of the software engineering applications or software engineering products. So normally we have indirect measures or indirect metrics, through that we actually assess the quality of software product. So sometimes it is also a part of debate that software is like unmeasurable. We cannot actually measure the software, because software nature is quite different than other products. But again, whatever metrics or measures we have, we can actually apply those metrics in a systematic way to have some idea or have some number about the quality of software product. So the sole purpose of measurement is in fact to discover and the correct potential problems before they become serious defects. So it is again, product metrics are actually directly related to the quality, and if we want to assess the quality, we need some kind of metrics or measures, and we will discuss in next slide that what is the difference between metrics and measure, because normally we use these terms interchangeably. So we discuss it. हम अगेन अपनी बात स्टार्ट करते हैं मेजर और मेजरमेंट ही से, कि ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड मेट्रिक्स. तो मेजर्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो measure is basically quantitative indication. What type of indication? Quantitative indication of the extent, amount, dimension, size or capacity of some attribute. किसी भी attribute की quantification देखें, एग्जाम्पल देखें, जैसे suppose we say number of errors that we uncovered in a single component. किसी ऑब्जेक्ट, किसी क्लास के अंदर अगर हम उसकी बात करें, उसको लें, तो जो नंबर ऑफ एरर्स हैं दैट इज़ क्वांटिटेटिव इंडिकेशन. ये आपको बता रहे हैं कि आपके जो कंपोनेंट है उसकी कितना क्वालिटी कंपोनेंट है, उसके अंदर कितने एरर्स हैं, तो ये समहाउ इंडिकेशन है. और फिर इसी तरह से सेकंड जो टर्म है दैट इज़ मेजरमेंट,
मेजरमेंट क्या है? द एक्ट ऑफ डिटर्मिनिंग ए मेजर. तो मेजरमेंट इज इन फैक्ट द प्रोसेस इन विच वी मेजर. और इसकी एग्जांपल क्या है कि अब हम ये कहें कि हाउ मैनी कंपोनेंट्स वी रिव्यूड, तो नंबर ऑफ जो रिव्यूज हैं दैट इज द मेजरमेंट. और उसके अंदर जो मेजर था नंबर ऑफ एरर्स था. थर्ड जो टर्म है दैट इज मीट्रिक. और मीट्रिक इज इन फैक्ट दैट स्पेसिफिक इंडिकेटर. वो जो क्वांटिटेटिव हमने इंडिकेशन की बात की है, तो वो जो इंडिकेशन है दैट इज मीट्रिक इटसेल्फ. और इसको देखें इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है, ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द डिग्री to which a system component or process possesses a given attribute. कि किस तरह से हमें वो इंडिकेशन मिलेगी, वो इंडिकेशन क्या होगी, दैट इज मीट्रिक. और इसकी एग्जांपल देखें, एवरेज नंबर ऑफ एरर्स फाउंड पर रिव्यू. अब एवरेज नंबर ऑफ एरर्स जो है पर रिव्यू हमने जो डिस्कवर किए हैं या अनकवर किए हैं, दैट इज द इंडिकेशन, वो मीट्रिक है टू मेजर द some attribute and this whole process is the measurement. तो अब आपको इसको कोई confusion नहीं होनी चाहिए कि what is the difference between measure, measurement and metric. तो जो different metrics हैं, different products के अंदर different तरह के metrics जो है वो आप उनको calculate कर सकते हैं और उनके थ्रू फिर आप अपनी assessment, अपनी interpretation बता सकते हैं. लेकिन मैट्रिक्स जो है यहाँ पे अब आज का जो टॉपिक है कि दैट इज़ प्रोडक्ट मैट्रिक्स, के हमारे पास क्या पॉसिबल मैट्रिक्स हैं अगर हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी को असेस करना चाहते हैं. और इसके अंदर जो नॉर्मली जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं वो समहाउ इनडायरेक्ट मैट्रिक्स हैं, कुछ डायरेक्ट मैट्रिक्स भी हैं. तो हम इसकी आगे बात करें. और अभी जो हम चीज़ें जो अब एक्टिविटीज़ जो चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं उनको हम जनरल हेडिंग के अंडर डिस्कस कर रहे हैं. एंड दैट हेडिंग इज फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्ट मैट्रिक्स. कि जब हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो क्या कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, क्या कुछ जो है हमारे पास गाइडलाइंस हैं और कैसे ये सारा कुछ होगा. इस सारे को हमने एक जर्नल फ्रेमवर्क कह रहे हैं कि फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्ट मैट्रिक्स. और इसमें अब हमने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया, टर्म्स को डिस्कस कर लिया. अब हम और इस पे फर्दर बात करते हैं. की चैलेंज क्या है जब हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं. तो अक्सर जो लोग हैं, जो अक्सर रिसर्चर्स जो हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ सिंगल मैट्रिक दैट कैन एक्चुअली गिव अस द कलेक्टिव असेसमेंट, या इन जनरल जो है पूरी प्रोडक्ट के मतलब हमें कुछ आइडिया मिल सके. तो ये जो अप्रोच है ये शायद कुछ ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक सिंगल जो मैट्रिक है वो आपको ओवरऑल क्वालिटी के हवाले से कुछ इंडिकेशन दे. आपको मल्टीपल मैट्रिक्स चाहिए. और इसकी एग्जांपल देखें कि सपोज यू वांट टू इवैल्यूएट एनी कार एंड यू आर ट्राइंग टू कैटेगराइज दैट दिस कार इज एन अट्रैक्टिव कार. तो अब अट्रैक्टिव की जो डेफिनेशन है या अट्रैक्टिव आप किसको कह रहे हैं, तो ये डिफरेंट जो लोग होंगे, डिफरेंट जो वैल्यूएटर्स होंगे, डिफरेंट ओपिनियंस रखते होंगे. किसी के नज़दीक, सपोज मेरे नज़दीक अट्रैक्टिव कार वो होगी जो देखने में अच्छी हो. किसी और टेक्निकल जो कोई बंदा है उसके नज़दीक अट्रैक्टिव कार वो होगी जिसका इंजन बड़ा स्ट्रांग हो, मजबूत हो, अंदर से उसका इंटीरियर जो है वो अच्छा हो, तो उसके लिए वो अट्रैक्टिव है. किसी और के लिए हो सकता है कि कुछ और जो है उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे मिसाल के तौर पे ये भी तो हो सकता है कि आप उसकी जो मेक है, क्या उसका ब्रांड है, कौन सा वो मॉडल है, तो इस तरह की जो स्पेसिफिकेशंस है उसके थ्रू वो जो है उसको अट्रैक्टिव कहता हो. तो अब कोई एक, अब हर जो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, उनके बेस के ऊपर अगर आप इसको मेजर करना चाहें अट्रैक्टिव को कि ये कार अट्रैक्टिव है या नहीं है, तो डेफिनेटली हर एक के अपने मैट्रिक्स होंगे. तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक मैट्रिक के थ्रू आप सारों की जो डेफिनेशन अट्रैक्टिवनेस की उसको असेस कर सकें. तो इसी तरह सॉफ्टवेयर के केस में भी, और सॉफ्टवेयर की नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है. तो अब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि किसी एक आध मैट्रिक के थ्रू आप ओवरऑल जो है असेसमेंट कर सकें. डिफरेंट मैट्रिक्स के थ्रू डिफरेंट तरह के आपको
एवेलुएशन या असेसमेंट जो है वो मिल सकती है। अब जो मेजरमेंट प्रोसेस है, जो ये ओवरऑल जो प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स 5 एक्टिविटीज़, और वो 5 एक्टिविटीज़ क्या है? द फर्स्ट एक्टिविटी इज फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन द मैट्रिक्स, द इंडिकेशन जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, जिसके थ्रू आप कुछ जो है मेजर करना चाह रहे हैं, कोई भी एट्रीब्यूट। द सेकेंड एक्टिविटी इज कलेक्शन ऑफ डेटा, जो भी जो भी एंटिटी, जो भी प्रोडक्ट जो है अंडर कंसिडरेशन है, उससे रिलेटेड जो डेटा कलेक्शन है, डेटा गैदरिंग है, दैट इज इनफैक्ट कलेक्शन। और फिर इसी तरह से थर्ड इज एनालिसिस मीन के you have to compute, you have to do some calculation, or you have to apply some mathematical tools to analyze जो भी उससे relevant, जो भी आपका जो भी entity, जो भी component under consideration है। और अब यहाँ पे हम सारे सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो सॉफ्टवेयर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उससे रिलेटेड आपने कैसे कैलकुलेशंस करनी है, कैसे आपने डेटा गैदर करना है, फिर एनालिसिस। अच्छा, जो फोर्थ है इंटरप्रिटेशन। जब आपने कंप्यूटेशन कर ली, जब आपने वो कैलकुलेशंस कर ली, तो उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं उसको कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं, आप कैसे उसको एवेलुएट करते हैं, व्हाट इज़ योर असेसमेंट। और फिर फिफ्थ जो की एक्टिविटी है, दैट इज़ फीडबैक। बेस्ड ऑन योर असेसमेंट, एवेलुएशन, इंटरप्रिटेशन, आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक कंपोनेंट और प्रोडक्ट, और वो रिकमेंडेशंस जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प आउट करेंगी। तो ये 5 की एक्टिविटीज़ हैं इस सारे मेजरमेंट प्रोसेस के अंदर। अब हम बात करते हैं कि क्या की प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैट्रिक कैरेक्टराइजेशन और उसकी वैलिडेशन के लिए हो सकते हैं। डेफिनेटली इफ़ वी आर यूजिंग सम मैट्रिक्स, दोज मैट्रिक्स मस्ट बी वैलिडेटेड मैट्रिक्स। पहले से उनको किसी ने वैलिडेट किया हो कि वो एक्यूरेट हैं, आप कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे और जिस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं वो उसी के मतलब आपको इंडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो पहला जो देखें, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, की प्रिंसिपल, दैट इज ए मैट्रिक शुड हैव डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, कि आपका जो मैट्रिक है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। लाइक उसको हम नंबर में डिफाइन कर सकें कि 0, 1, 2। अगर सपोज हम 0 ही और 0 और 1 को ले लेंगे, 0 मीन लेट्स से कि पुअर, 1 मीन गुड, तो इस तरह से वो मीनिंगफुल आपको इंफॉर्मेशन दे और किसी स्पेसिफिक नंबर के अंदर होना चाहिए, किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर होना चाहिए। सेकेंड प्रिंसिपल देखें, व्हेन अ मैट्रिक रिप्रेजेंट्स ए सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक दैट इंक्रीजेज व्हेन पॉजिटिव ट्रेट अकर or decreases when undesirable traits are encountered. The value of the matrix should increase or decrease in the same manner. Quite simple कि जो मैट्रिक है उसको सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक के साथ सिंक होना चाहिए। अगर वो जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो जो आपका मैट्रिक है उसको भी उसी तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए। लेट्स से हम बात करते हैं कोहेजन की, तो कोहेजन अगर बढ़ रही है, अगर आप समझते हैं कि कंपोनेंट जो है वो कोई भी उसके लिए मैट्रिक हो सकता है, वो कोहेजन को जो है इंडिकेट कर रहा है, तो अगर कोहेजन बढ़ती है तो वो मैट्रिक भी बढ़ना चाहिए, उसकी वैल्यू भी बढ़ना चाहिए। जैसे पता चले कि अच्छा अगर ये नंबर बड़ा है तो इट मीन्स के हाई कोहेजन, अगर ये नंबर कम है इट मीन्स लो कोहेजन। तो इसके ये मीनिंग है। थर्ड प्रिंसिपल देखें, each metric should be validated empirically in a wide variety of context before published or used. What does it mean? कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक metric propose किया, आपने कुछ brainstorming की, you come up with some kind of metric, और वो metric जो है आपने किसी toy example के साथ उसको evaluate किया, उसको देखा, validate किया कि okay fine आपको अच्छे results दे रहा है, लेकिन उसको प्रॉपरली आपने वैलिडेट नहीं किया। और अगर उसकी डिफरेंट तरह से जो है वैलिडेशन हो सकती है, उसकी मैथमेटिकल जो है वेरिफिकेशन हो सकती है, वैलिडेशन हो सकती है, और फिर इसके साथ साथ उसको लार्ज स्केल के ऊपर नहीं देखा कि अगर वो जो भी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के लिए आपने मैट्रिक प्रपोज किया है वो जब लार्ज स्केल के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे तो वो क्या उसी तरह से बिहेव करेगा, उसी तरह से रिजल्ट्स देगा या नहीं देगा।
ये तो की प्रिंसिपल्स हो गया है कि हम मैट्रिक कैरेक्टराइजेशन और वैलिडेशन कैसे करेंगे। इसी तरह से हमारे पास कुछ और की गाइडलाइंस हैं एंड दैट आर रिलेटेड टू हाउ टू कंडक्ट दीज एक्टिविटीज़। जो मेजरमेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे कंडक्ट करनी, जो पीछे जो हमने 5 की एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया है। द फर्स्ट गाइडलाइन इज द डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस शुड बी ऑटोमेटेड। मतलब हमें ये कोशिश करनी चाहिए व्हेन एवर इट इज़ पॉसिबल डेटा कलेक्शन एनालिसिस शुड बी थ्रू सम ऑटोमेटेड टूल्स। मैनुअल जो है ये काम मुश्किल है, तो आमतौर पे ऐसे ही होता है। इंडस्ट्री के अंदर भी डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप डेटा कलेक्शन और एनालिसिस करते हैं। सेकंड, वैलिड स्टैटिस्टिकल टेक्निक शुड बी अप्लाइड, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट तरह के आपके पास स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं जो कि आप डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका डेटा की नेचर क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को सिलेक्ट करना है जो कि आपको फिर डिफरेंट तरह की इंडिकेशंस देंगे, और उस इंडिकेशंस के थ्रू आपने इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस और रिकमेंडेशंस देनी है। थर्ड, इंटरप्रेटेटिव गाइडलाइंस शुड बी एस्टैब्लिश्ड। जो आपने इंटरप्रिटेशन करनी है उसके लिए भी समहाउ आपके पास कोई गाइडलाइंस पहले से होनी चाहिए कि किस तरह से आप उनको इंटरप्रेट करेंगे। आपका कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है, कोई प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप किस तरह से चीज़ों को जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं या रैंक करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने उनको जो भी आपके रिजल्ट्स हैं उसको इंटरप्रेट करना होता है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट मैट्रिक्स के जो हम इन जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि आपके पास ये अप्रोच भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड गोल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर मेजरमेंट। और इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, गोल, क्वेश्चन एंड मैट्रिक्स। और इसको गोल, क्वेश्चन, मैट्रिक्स या GQM पैराडाइम भी कहते हैं। और गोल मीन कि आप पहले एक्सप्लिसिटली कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करें और उस जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या गोल है उसके अगेंस्ट आप सेट ऑफ क्वेश्चंस डिफाइन करते हैं जिनको आपने आंसर करना है, और फिर उसके बेस के ऊपर अब उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए यू नीड सेट ऑफ मैट्रिक्स, और वो जो मैट्रिक्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें, और फिर उसके अगेंस्ट आपने क्या करना है, वैल्यूज लेनी है, डेटा कलेक्ट करना है और फिर उसको इंटरप्रेट करना है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, एक वेल नोन पैराडाइम है कि गोल, क्वेश्चन, मैट्रिक पैराडाइम को यूज़ करके आप अपनी असेसमेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट के हवाले से। और गोल जो होते हैं नॉर्मली वो क्या होते हैं, वो रिलेटेड टू क्वालिटी होते हैं। जैसे हमने पहले क्वालिटी गोल्स की बात की या क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की बात की, फिर उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर करना है, एंड टू आंसर दोज क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिक्स वी नीड। और फिर इसी तरह से एक और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, दैट इज़ अबाउट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, कि आप किन मैट्रिक्स को इफेक्टिव मैट्रिक्स कहेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स डिस्कस हुए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस हुई हैं दैट गाइड अस आर लीड अस टुवर्ड्स इफेक्टिव सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। तो ये एट्रीब्यूट्स क्या है जो इंडिकेशन देते हैं कि ये मैट्रिक वाकई अच्छे मैट्रिक्स हैं, वेल डिफाइंड है। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट इज सिंपल एंड कंप्यूटेबल। मैट्रिक जो है वो सिंपल होना चाहिए, अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, एंड इट मस्ट बी कंप्यूटेबल। जब आप उसको क्वांटिफाई कर सकें, जब एक नंबर में लेके आएंगे तो डेफिनेटली फिर आपकी वो मेजरमेंट और असेसमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो सिंपल, स्ट्रेट टू द पॉइंट और कंप्यूटेबल होना चाहिए। सेकेंड एट्रीब्यूट इज एम्पेरिकली एंड इंट्यूटिवली परसुएसिव। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, जो कि ये क्वालिटी से रिलेटेड लोग हैं जिन्होंने उसको उन मैट्रिक्स के अगेंस्ट जो है डेटा को एनालाइज करना है, कलेक्ट करना है, तो उसका जो पर्पस है, जो जिस तरह से उसकी एप्लीकेशन है उस मैट्रिक की, वो एक तो एम्पेरिकल नेचर की होनी चाहिए, और फिर इंट्यूटिव जो है उसके अंदर होनी चाहिए, इंट्यूशन होनी चाहिए। जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी कि कोहेजन को अगर हमने मेजर करना है तो मैट्रिक जो है, अगर कोहेजन बढ़ रही है तो मैट्रिक को भी बढ़ना चाहिए, अगर कोहेजन कम हो रही है तो मैट्रिक को भी कम होना चाहिए। तो दिस इज काइंड ऑफ इंट्यूटिव मैट्रिक।
और डेफिनेटली ये क्वालिटी से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल्स होंगे उनको इस तरह के मैट्रिक्स ज़्यादा यूजफुल लगेंगे। थर्ड एट्रीब्यूट ऑफ इफेक्टिव सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स इज कंसिस्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव। अगेन की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप एक मैट्रिक के थ्रू कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कुछ असेस करते हैं, तो वही मैट्रिक जब उसी तरह के डेटा के ऊपर किसी और को यूज़ करने को कहा जाए तो सेम रिजल्ट्स आने चाहिए, तब हम कहेंगे कि जो मैट्रिक है दैट इज़ कंसिस्टेंट। अदरवाइज तो फिर जो है वो इट मीन्स कि कहीं पे प्रॉब्लम है। अगर एक जैसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे एक जैसा डेटा के ऊपर, डिफरेंट जगहों के ऊपर जब आप उसको मल्टीपल टाइम्स जो है अप्लाई करते हैं, कलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड डेटा, तो फिर वो कंसिस्टेंट नहीं है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, किसी एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को, किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को जो है कैलकुलेट या असेस करे या आइडेंटिफाई करे, रादर देन कि मल्टीपल जो है एट्रीब्यूट्स के साथ एसोसिएटेड हो। इसी तरह से कंसिस्टेंट इन इट्स यूज ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। व्हाट डज इट मीन? दैट योर मैट्रिक्स शुड बी लॉजिकल इन द सेंस कि जो भी आपने उसके साथ यूनिट्स एसोसिएट किए हैं वो लॉजिकल होने चाहिए, वो उस तरह से मीनिंग कन्वे करने चाहिए जो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिसके होने चाहिए। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि ऐसा मैट्रिक नहीं होना चाहिए कि जैसे नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को कोई नंबर ऑफ लाइन के साथ जो है वो उसकी कैलकुलेशन कर रहा हो, क्योंकि नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एक टोटली डिफरेंट यूनिट है और नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स या उसको प्रोग्राम फंक्शंस के साथ कुछ एसोसिएट करना ये कुछ बात बनती नहीं है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, यूनिट मीनिंगफुल होने चाहिए। और फिर इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, ये एक और एट्रीब्यूट है कि मैट्रिक्स जो हैं वो लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होने चाहिए, उनको हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कोड्स या प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स जो भी हैं हमारे उनके ऊपर अप्लाई कर सकें, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज स्पेसिफिक ना हो। और फिर इसी तरह से एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर हाई क्वालिटी फीडबैक। व्हाट डज इट मीन? कि जो भी एट्रीब्यूट जो अंडर कंसिडरेशन है, कोई भी एंटिटी और ऑब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड वो मैट्रिक है, तो वो मैट्रिक जो है उसके उस स्पेसिफिक कंपोनेंट या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मीनिंगफुल फीडबैक दे, जो कि डायरेक्टली हमें हेल्प आउट करे टू असेस द क्वालिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक एंटिटी। तो तभी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर या एट्रीब्यूट्स होंगे किसी सॉफ्टवेयर मैट्रिक के अंदर, तो डेफिनेटली जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, जो हमें इंडिकेशन मिलेंगी, वो ज़्यादा अच्छी होंगी। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की और डिफरेंट जो हमारे फेजेस हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, उसके हवाले से हम बात करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रिक्वायरमेंट्स मॉडल को, कि जो रिक्वायरमेंट्स फेज के ऊपर किस तरह के मैट्रिक्स हमें अवेलेबल हैं और हम कैसे उनको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो पहली एक लिमिटेशन तो रिक्वायरमेंट्स मॉडल के या रिक्वायरमेंट्स के जो सारे जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड है कि जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैं दैट आर क्वाइट फ्यू, कि वो बहुत लिमिटेड से हैं, और जो यहाँ पे मैट्रिक्स यूज़ होते हैं रिक्वायरमेंट्स फेज के ऊपर दैट आर मोर टूवर्ड्स एस्टिमेशन टाइप ऑफ मैट्रिक्स, के जो एस्टिमेट करते हैं आपको, और ज़्यादातर क्या करते हैं ये रिलेटेड है साइज़ के साथ, और ये आपको प्रेडिक्शन देते हैं कंपोनेंट या सिस्टम साइज़ की। और इसके अंदर फिर डिफरेंट लोगों ने काम किया है, डिफरेंट मैट्रिक्स प्रपोज किए हैं, कुछ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप और भी फर्दर इसके अलावा भी देख सकते हैं बहुत सारे मैट्रिक्स। जो पहली हमारी डिस्कशन है इस हेडिंग के अंदर दैट इज़ फंक्शन बेस्ड मैट्रिक्स। फंक्शन बेस्ड मैट्रिक्स क्या होते हैं? दैट आर हेल्पफुल टू एस्टिमेट द कॉस्ट एंड एफर्ट फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। और इसको कैसे हम एस्टिमेट करते हैं इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। और सेकंड जो ये हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो सेकंड इनका ऑब्जेक्टिव है दैट दीज काइंड ऑफ मैट्रिक्स प्रोवाइड द प्रेडिक्शन अबाउट द नंबर ऑफ एरर्स। और फिर इसी तरह से हमें ये फोरकास्ट करते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में, या कोई पॉसिबल नंबर ऑफ लाइन कोड जो है, कितनी आपके पास सोर्स लाइंस होंगी, उस तरह की इंडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। इसके पहले कहा कि ये साइज़ के मुतालिक प्रेडिक्शन करते हैं।
तो अब इसको हम और ज़रा डिटेल में देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो जिसको हम फंक्शन बेस्ड मैट्रिक्स कह रहे हैं, इसमें हमारे पास क्या मैट्रिक्स अवेलेबल है। फर्स्ट मैट्रिक इज नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स, इसको EI से रिप्रेजेंट किया गया है। और इनपुट क्या होती है, फ्रॉम नॉर्मली इट इज़ फ्रॉम यूज़र साइड, और यूज़र साइड से भी हो सकती है, और समटाइम्स कोई और जो एप्लीकेशन है, कोई और प्रोडक्ट से भी आपको इनपुट मिल सकती है। तो वो जो डिफरेंट या यूनिक इनपुट्स हैं दैट आर एक्चुअली काउंटेड, उसको हम एक्सटर्नल इनपुट्स कह रहे हैं। और ये जो है आमतौर पे इस तरह की जो इनपुट्स होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, आपके जो इंटरनल जो लॉजिक होती है प्रोग्राम की, जो लॉजिकल फाइल्स होती हैं, और आगे बात करेंगे और डेटा से रिलेटेड भी, तो उनको अपडेट करती हैं। और इस इनपुट के अंदर इंक्वायरीज इंक्लूडेड नहीं है। इंक्वायरीज क्या है इसको आगे बात करेंगे, और इंक्वायरी से वैसे भी मीनिंग बड़े क्लियरली कन्वे हो रहे हैं, तो इंक्वायरी जो है वो इनपुट नहीं है। इसी तरह से जो दूसरा मीट्रिक है दैट इज नंबर ऑफ एक्सटर्नल आउटपुट्स। और आउटपुट क्या होती है, जो भी आपकी एप्लीकेशन ने डेटा डिराइव किया, जो आपको डिस्प्ले करना है यूज़र को इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, स्क्रीन्स और काइंड ऑफ एरर मैसेजेस, ये सारे क्या है, ये एक्सटर्नल आउटपुट्स हैं। और इसके अंदर जो है वो आइटम्स इंक्लूडेड नहीं है, इंडिविजुअल आइटम जो किसी एक रिपोर्ट के ऊपर हो सकता है कि मल्टीपल जो है आपके पास आइटम्स हो, मल्टीपल काइंड ऑफ डेटा हो, तो वो रिपोर्ट इटसेल्फ जो है वो एक आउटपुट है। एक और मीट्रिक दैट इज एक्सटर्नल इंक्वायरीज। एक्सटर्नल इंक्वायरीज क्या होती हैं, आमतौर पे यूजर्स जो है वो ऑनलाइन क्यूरी करते हैं सिस्टम के ऊपर, और वो रन टाइम के ऊपर सिस्टम जो है वो रिस्पांस देता है, ऑनलाइन आउटपुट जनरेट करता है। तो वो उस तरह की जो क्यूरीज हैं दैट आर इंक्वायरीज, एंड दीज इंक्वायरीज आर डिफरेंट देन external input. Next metric is number of internal logical files. और logical files क्या होती हैं, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ डेटा जो है उसको लॉजिकल फाइल्स कह रहे हैं। कितनी आपने ग्रुप्स में डिवाइड किया है डेटा को, किस तरह से आपने उसको मैनेज किया है, दैट इज नंबर ऑफ इंटरनल लॉजिकल फाइल्स विद इन दैट एप्लीकेशन बाउंड्री, जो सिर्फ एप्लीकेशन रिलेटेड है। नेक्स्ट मीट्रिक इज एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल क्या है कि लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ एक्सटर्नल डेटा, जो एप्लीकेशन की बाउंड्री से बाहर है, जो आपकी एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है, तो वो जो डेटा है दैट इज एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। तो अब जो आपके पास फार्मूला है, जो फंक्शन पॉइंट जो आपने कैलकुलेट करना है FP, दैट इज काउंट टोटल। और काउंट टोटल इसके आगे हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। ये जो ऊपर हमने सारे डिफरेंट मैट्रिक्स लिए, इन सारे नंबर्स को हमने काउंट करना है, दैट वुड बी काउंट टोटल। काउंट टोटल को मल्टीप्लाई करना है विद, आप देखें कुछ कांस्टेंट नंबर है 0.65 प्लस 0.01, एंड देन मल्टीप्लिकेशन है विद सम ऑफ FI। तो FI क्या है इसको भी आगे देखते हैं और एक एग्जांपल से समझते हैं। इस स्लाइड के ऊपर देखें, यहाँ पे एक फिगर के थ्रू, और ये फिगर जो है पेज 6-1 से ली गई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर्स अप्रोच से। इसके अंदर देखें हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर डिफरेंट वो इनपुट्स आउटपुट्स हैं जो हमने डिफरेंट मैट्रिक्स वहाँ पे पीछे डिस्कस किए। आगे देखें सेकंड कॉलम इज द काउंट, और यहाँ पे वो हमने काउंट लिखना है, किसी भी एक तरह का टेम्पलेट है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट लिखेंगे किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट एप्लीकेशन के लिए, और फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे हर एक काउंट को। यहाँ पे वेटिंग फैक्टर दिया गया है, और ये जो टीम मेंबर्स हैं, जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं जिन्होंने इसको ये कैलकुलेट करना है, असेस करना है, उन्होंने डिसाइड करना है कि ये जो स्पेसिफिक एक फैक्टर है या मीट्रिक है, इसकी वेटेज क्या है। ये एप्लीकेशन की कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए और इसके नंबर को देखते हुए, क्या ये सिंपल है, एवरेज है या कम्प्लेक्स है। और सिंपल, एवरेज, कम्प्लेक्स के लिए तीनों के लिए डिफरेंट जो है वैल्यूज़ हैं, और फिर अगेन हर एक फैक्टर जो इनपुट आउटपुट ये सारे जो हैं मैट्रिक्स, इनके लिए हर एक की डिफरेंट वैल्यू है। इन वेटिंग फैक्टर जो है वो डिफरेंट है, और फिर इससे हमारे पास क्या आएगा, दैट इज काउंट टोटल।
अब इस स्लाइड के ऊपर देखें जो हमने फॉर्मूला पीछे डिस्कस किया, एफ पी इज इक्वल टू काउंट टोटल और ये आगे ऑनवर्ड। तो अब इसमें एफ आई क्या है, काउंट टोटल को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। एफ आई क्या है, एफ आई इज बेसिकली द वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर्स। और ये क्या फैक्टर है कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है या डिफरेंट आपके पास कॉन्स्टेंट्स या कंसिडरेशंस हैं, उनको देखते हुए आप हर एक के लिए डिफरेंट जो है एक नंबर असाइन करते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं और दैट वैल्यू इज फ्रॉम 1 to 14। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। डज द सिस्टम रिक्वायर रिलायबल बैकअप एंड रिकवरी, अभी इसको आपने वेटेज देनी है, कोई नंबर देना है, इसकी वैल्यू एडजस्टमेंट करनी है। फिर इसी तरह से आर स्पेशलाइज्ड डेटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू और फ्रॉम द एप्लीकेशन, क्या डेटा कम्युनिकेशन की जो है कोई स्पेशल जो है रिक्वायरमेंट तो नहीं है कम्युनिकेशन की, एप्लीकेशन से जो कम्युनिकेशन हो रही है डेटा। और आर देयर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग फंक्शंस, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग फंक्शंस तो नहीं है। इज परफॉर्मेंस क्रिटिकल, सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो कितनी क्रिटिकल है आपके लिए। तो अब इन सब को जो है इस तरह से डिफरेंट आप वैल्यूज असाइन करते हैं, फिर उसका सम जो है उसको इन कांस्टेंट के साथ जो है वो ऐड करके पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.01 से और फिर उसको ऐड करते हैं और फिर काउंट टोटल के साथ। तो ये अब इंडिकेशन है, फंक्शन बेस्ड मैट्रिक्स जो है ये आपको इंडिकेशन दे रहा है। और इंडिकेशन किसके मुतालिक दे रहा है, हमने पहले बात की कि साइज के मुतालिक दे रहा है, नंबर ऑफ एरर्स को प्रेडिक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या होंगे, साइज से रिलेटेड जो आपकी प्रेडिक्शन है वो आपको मिलेंगी। अब हम रिक्वायरमेंट्स मॉडल के अंदर ही जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, तो स्पेसिफिकेशन क्वालिटी की बात करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या मैट्रिक्स है। तो जब हम रिक्वायरमेंट्स की क्वालिटी को असेस करते हैं तो कब हम कहेंगे कि ये क्वालिटी जो है रिक्वायरमेंट्स है, ये रिक्वायरमेंट्स वेल डिफाइंड है, ये एक प्रॉपरली जो है स्पेसिफाई की गई हैं, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द फर्स्ट वन इज स्पेसिफिसिटी, कि आप रिक्वायरमेंट्स जो है दैट मस्ट बी स्पेसिफिक, टू द पॉइंट होनी चाहिए। किसी एक जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर डिस्क्राइब होनी चाहिए। सेकेंडली कंप्लीटनेस, रिक्वायरमेंट जो है वो इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, उसको कंप्लीटली जो है डिस्क्राइब करना है ताकि वो जो मीनिंग है प्रॉपर और जो भी उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपरली कन्वे होना चाहिए। करेक्टनेस, करेक्ट होनी चाहिए, इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो भी उसको रीडर है उसको अगर पढ़े वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। वेरीफाइबिलिटी, दैट रिक्वायरमेंट मस्ट बी वेरीफाइबल, उसको वेरीफाई किया जा सके। इसी तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। फिर अचीवेबिलिटी होनी चाहिए, उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को अचीव किया जा सके, जो भी एफर्ट उसके अंदर इन्वॉल्व है उसके थ्रू उसको अचीव किया जा सके। कॉन्सिजन, टू द पॉइंट, कंसाइज होनी चाहिए, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। ट्रेसेबिलिटी, उस रिक्वायरमेंट को ट्रेस किया जा सके कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कहाँ क्या उसका सोर्स है। डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं रिक्वायरमेंट्स के और उसको उस तरह से देखना चाहिए। और फिर इसी तरह से मॉडिफाइबिलिटी, उसको मॉडिफाई किया जा सके, ऐसा ना हो इस तरह से डिस्क्राइब नहीं किया जाए कि जिसको मॉडिफाई ना कर सके। और फिर प्रिसीजन, प्रिसाइज होनी चाहिए। और फिर रीयूजेबिलिटी, उसको रीयूज किया जा सके। तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये अभी मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जब हम करते हैं तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कब अच्छी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कराएगी, जब उसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अब यहाँ पे एक और डिस्कशन है कि कब हम रिक्वायरमेंट्स को जो है कहते हैं कि ये हाई क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। पीछे हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स की स्पेसिफिकेशन की बात की, अब हम कह रहे हैं कि हाई क्वालिटी रिक्वायरमेंट क्या होती है। और हाई क्वालिटी रिक्वायरमेंट वो होती है दैट कैन बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक थ्रू सम सॉफ्टवेयर टूल उसको मैनेज कर सकें, स्टोर कर सकें। सेकेंड, इट मस्ट बी इंटरप्रेटेबल, उसको इंटरप्रेट किया जा सके, उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। जो लोग उसको, डिफरेंट लोग अगर उसको पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो सबकी इंटरप्रिटेशन एक जैसी होनी चाहिए। एंड थर्ड, एनोटेटेड बाय रिलेटिव इम्पोर्टेंस, उसको क्लासीफाई किया जा सके बेस्ड ऑन इट्स इम्पोर्टेंस। एंड स्टेबल, वो वोलाटाइल नेचर की नहीं होनी चाहिए, बल्कि
स्टेबल होनी चाहिए रिक्वायरमेंट। और फिर इसी तरह से वर्जनड, उसके डिफरेंट वर्जन, अगर सपोज चेंजेस किसी वजह से अकर होती हैं, चेंज अकोमोडेट करनी पड़ती है, तो फिर उसको उसकी वर्जनिंग भी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए ऑफ कोर्स, और क्रॉस रेफरेंस्ड होनी चाहिए। अगर कोई और जो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके साथ इसकी डिपेंडेंसी है इस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की, कुछ ये डिपेंडेंट हो सकती है दूसरे रिक्वायरमेंट्स पे, और कुछ और रिक्वायरमेंट्स इसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकती हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो ये डिपेंडेंसी, इसको क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल होनी चाहिए। और फिर इसी तरह से राइट लेवल ऑफ डिटेल होना चाहिए, अननेसेसरी डिटेल्स भी नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है वो लिमिटेड या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए जिससे पढ़ के उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड ना किया जा सके। तो ये अगर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो वी मे से दैट दीज आर हाई क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। अब इन रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड मैट्रिक्स क्या हैं और किस तरह से हम उनको क्वालिटी को असेस कर सकते हैं, अब हम उसको देखते हैं। अब हमारे पास एक सिंपल मेट्रिक जो है दैट इज टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स कैन बी कंप्यूटेड और इट इज सिंपली द सम ऑफ नंबर ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नंबर ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ये दोनों का सम जो है वो हमें टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स देता है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, स्पेसिफिसिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो है अगर हम इसको मेजर करना चाहें तो कैसे मेजर कर सकते हैं। देखिए हम इसको कह रहे हैं Q1 इस मेट्रिक को, एंड दैट इज NUI डिवाइडेड बाय NR। और अगर ये नंबर जो है जो, अच्छा NUI क्या है, NUI वो है कि जिसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं है। अगर डिफरेंट लोग जो है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर रहे हैं और एक ही इंटरप्रिटेशन है किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट, तो वो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो है वो कितनी है, वो नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो जितने भी ये नंबर क्लोज होगा टू 1 उतने ही हमें इसका आइडिया होगा कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनके अंदर एम्बिग्विटी कम है या एम्बिग्विटी नहीं है। तो ये एक तरह का आपने देखें कि किस तरह से इसको मेजर किया जा सकता है स्पेसिफिसिटी को। और फिर इसी तरह से इफ वी वांट टू मेजर द कंप्लीटनेस ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, तो जो कंप्लीटनेस है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उसको कैसे करेंगे, इसको Q2 से रिप्रेजेंट किया है NU डिवाइडेड बाय NI इंटू NS। अब NU क्या है, NU इज नंबर ऑफ यूनिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और NI क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स डिफाइंड, और NS क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स स्पेसिफाइड। तो अब इसे देखें, आप जब इस नंबर के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं या आइडिया ले सकते हैं कि आपकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस हद तक कंप्लीटली डिस्क्राइब हुई हैं, उनके अंदर कंप्लीटनेस का एलिमेंट है। और अगर हम कंप्लीटनेस इन जनरल देखना चाहें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, तो फिर उसके अंदर देखें उसको Q3 से रिप्रेजेंट किया है, एंड दैट इज NC डिवाइडेड बाय NC इंटू NV। और NC क्या है, दैट इज नंबर ऑफ वैलिडेटेड रिक्वायरमेंट्स, जो जिनको वैलिडेट किया जा सकता है, वैलिडेट कर सकते हैं। और NV है दैट इज नॉन वैलिडेटेड रिक्वायरमेंट्स, जिनको नहीं किया जा सकता। तो नंबर ऑफ वैलिडेटेड रिक्वायरमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वैलिडेटेड एंड नॉन वैलिडेटेड, इससे आपको हिंट मिलता है अबाउट द कंप्लीटनेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन जनरल। तो आल्दो कि अब ये इतने हम इसको कह सकते हैं कि ये उस तरह से डायरेक्ट मेजर्स नहीं है, या हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक या रिलायबल नहीं है, लेकिन स्टिल आपको ये इंडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। और इस तरह से अगर मेजर्स को यूज़ करेंगे, इन मैट्रिक्स को अगर हम लेंगे, फॉलो करेंगे, तो अगेन ना होने से बहुत बेहतर है कि हम इसको इस तरह के मैट्रिक्स को यूज़ करें। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन मॉडल के अंदर हमारे पास क्या मैट्रिक्स हो सकते हैं। डिज़ाइन फेज के ऊपर जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से किस तरह से हम जो है क्वालिटी को असेस कर सकते हैं, क्या मैट्रिक्स हैं हमारे पास। तो डिज़ाइन जो है एक्टिविटी, ये इट इज़ क्वाइट कम्प्लेक्स एक्टिविटी। और अगर हम एयरक्राफ्ट जो है डिज़ाइन की बात करें, अगर कंप्यूटर चिप के डिज़ाइन की बात करें, तो डेफिनेटली उस टाइम के ऊपर, डिज़ाइन टाइम के ऊपर ही उनके पास ऐसे मैट्रिक्स अवेलेबल होते हैं, ऐसे उनके पास इंडिकेशंस और
वेज या हैं या डिवाइसेस ऐसे हैं कि जिनके थ्रू आप उसको क्वांटिफाई कर सकें, उसकी क्वालिटी को असेस कर सकें। तो जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर हमारे पास ऐसा बहुत कम होता है कि हमारे पास मैट्रिक्स हों हम जिनके थ्रू जो है उसकी क्वालिटी को असेस कर सकें। तो हमें यहाँ पे और ज़्यादा रिसर्च की और ज़्यादा हमें यहाँ पे इनोवेटिव होने की ज़रूरत है। हमें इस पे सोचने की ज़रूरत है कि और लेकिन स्टिल मैट्रिक्स यहाँ पे भी हैं हमारे पास जिनको हम फॉलो कर सकते हैं और जिनके थ्रू हम समहाउ असेस कर सकते हैं। तो जो पहला इसके अंदर जो मैट्रिक्स हैं दैट आर रिलेटेड टू आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अंदर आर्किटेक्चर को जो है ये काइंड ऑफ ब्लैक बॉक्स मैट्रिक्स हैं। हम इंटरनल डिटेल में नहीं जा रहे, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। और इसके अंदर 3 डिफरेंट तरह की कम्प्लेक्सिटी को मेजर कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी, द अदर वन इज डेटा कम्प्लेक्सिटी एंड थर्ड वन इज सिस्टम कम्प्लेक्सिटी। अब देखें जो स्ट्रक्चर कम्प्लेक्सिटी है दैट इज रिप्रेजेंटेड विद एस आई, एंड एस आई इज इक्वल टू एफ आउट आई। ये एफ आउट आई क्या है? It is the number of modules that are directly associated with some specific module or component। तो अब उससे जो उनकी जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है एक स्पेसिफिक कंपोनेंट मॉड्यूल की विद अदर मॉड्यूल्स, उसके बेस के ऊपर हम देख सकते हैं कि ये कितना कम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर इसका। तो डेटा कम्प्लेक्सिटी को देखें, वी आई डिवाइडेड बाय एफ आउट प्लस 1। तो वी आई इज बेसिकली द number of variables, and number of variables divided by total number of modules that are directly related or communicated with that specific module। तो उसकी बेस के ऊपर हम डेटा कम्प्लेक्सिटी को जो है मेजर कर सकते हैं, somehow उसका आइडिया ले सकते हैं। इसी तरह से सिस्टम कम्प्लेक्सिटी को अगर हम असेस करना चाहें तो इन दोनों का जो सम अप है स्ट्रक्चर कम्प्लेक्सिटी प्लस डेटा कम्प्लेक्सिटी, और सिस्टम कम्प्लेक्सिटी को सी आई से प्रेजेंट किया गया है। तो इन दोनों का सम जो है डेटा और स्ट्रक्चर कम्प्लेक्सिटी का दैट इज ओवरऑल सिस्टम कम्प्लेक्सिटी। एक और तरह की मैट्रिक्स जो कि हम यूज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी मैट्रिक्स। और मॉर्फोलॉजी मैट्रिक्स मीन के जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, शेप से रिलेटेड है। जब हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, जब हम उसकी हायरार्की की बात कर रहे हैं, तो उसके थ्रू जो है हम कुछ चीज़ों को क्वांटिफाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखें साइज, और साइज क्या है बेसिकली वही अगेन मॉर्फोलॉजिकल मैट्रिक है, और दैट इज सम ऑफ n प्लस n एंड a। n क्या है? नंबर ऑफ नोड्स हैं, और a क्या है? a नंबर ऑफ आर्क्स हैं। और इसके अंदर डेप्थ क्या है? डेप्थ इज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड। और विड्थ क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट एनी स्पेसिफिक लेवल। तो वो जो नंबर है दैट इज विड्थ, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं। और इसी तरह से कनेक्टिविटी डेंसिटी क्या है? दैट इज आर्क टू नोड रेशो। अब जैसे आपने ये ट्रीज स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे और उनको देखा होगा आपने, तो बिल्कुल उसी तरह से अगर हम अपने हायरार्की के अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स को, कंपोनेंट्स को जो है वो डिस्प्ले करते हैं, तो उसके थ्रू इस तरह के मेजर्स हम ले सकते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू जो है अंडरस्टैंड करते हैं। इस फिगर को देखें, ये फिगर 625 पेज नंबर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ए प्रैक्टिशनर अप्रोच से ली गई है। इसके अंदर जो ए है दैट इज रूट नोड, और फिर नीचे तक देखें डिफरेंट और हमारे पास नोड्स हैं, और इन नोड्स के साथ हमारे पास आर्क्स हैं जिनके थ्रू ये कनेक्टेड हैं। तो नंबर ऑफ नोड्स जो हैं दैट इज 17, और नंबर ऑफ आर्क्स आर 18। तो अगर हमने ये रेशो लेनी है आर्क्स टू नोड रेशो, जो कि हमें डेंसिटी बताती है दैट इज 1.06। तो अगर आप इसको आप देखें कि कितना इससे सिंपल है इसको अंडरस्टैंड करना, और इससे स्टिल हम एक असेस कर सकते हैं कि कितनी जो है वो कपलिंग होगी जब इस तरह का कंपोनेंट जब होंगे और इस तरह का जब सिस्टम डिज़ाइन होगा। तो ये हमें समहाउ क्वांटिटेटिव एक असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन होगा तो उस वक्त क्या मैट्रिक्स होंगे, और ये मैट्रिक्स जो है उनसे डिफरेंट होंगे ट्रेडिशनल मैट्रिक्स के। और इसके अंदर भी हमारे पास बहुत लिमिटेड से जो है मैट्रिक्स हैं जो
बहुत ज़्यादा हम उनको ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा थॉरो हैं, लेकिन स्टिल हमें इंडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। और जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की बात करते हैं तो देयर आर 9 डिस्टिंक्ट एंड मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो क्या है? द फर्स्ट वन इज साइज, कि साइज क्या है ऑब्जेक्ट्स का। उसके अंदर अगेन 4 डिफरेंट जो है की पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन बेसिकली क्या है? स्टैटिक काउंट ऑफ एंटिटीज है, डिफरेंट एंटिटीज लाइक क्लासेस, तो उनका जो नंबर है दैट इज पॉपुलेशन। ये डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के अंदर अब हम बात कर रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से मुराद क्या होती है? वो अगेन पॉपुलेशन से रिलेटेड है, और वो पॉपुलेशन मैयत जो है एक किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के ऊपर क्या है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। और अगर लेंथ की बात करें साइज के अंदर, तो जो डिफरेंट इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स हैं उनकी जो सीरीज है दैट इज रिलेटेड टू द लेंथ। और अगर फंक्शनैलिटी की बात करें तो फंक्शनैलिटी इज बेसिकली इंडिकेशन ऑफ द वैल्यू प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, कि वो क्या फंक्शनैलिटी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट वो कंपोनेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये साइज के अंदर ही ये डिफरेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने ब्रीफली डिस्कस किया। एक और कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कम्प्लेक्सिटी, और कम्प्लेक्सिटी को जो है हम स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की टर्म में देखते हैं, जैसे हाउ क्लासेस आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर। तो ये बेसिकली क्या है? ये कम्प्लेक्सिटी है कि किस तरह की उनकी कनेक्टिविटी हो रही है आपस में। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज कपलिंग। कपलिंग को पहले भी हमने डिस्कस किया था। फिजिकल जो कनेक्शन है बिटवीन एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड कपलिंग। वो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के अंदर। इसी तरह से सफिशिएंसी, और सफिशिएंसी इज रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कि जो एक स्पेसिफिक डिज़ाइन कंपोनेंट है अगर वो जिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को जो है वो अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया गया है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली उसके अंदर जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, वो प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, दैट इज सफिशिएंसी। सफिशिएंसी से रिलेटेड एक और जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज कंप्लीटनेस, और कंप्लीटनेस जो है वो हमें मल्टीपल व्यू पॉइंट्स देती है। जैसे देखें व्हाट प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू फुली रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम डोमेन ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंट जो व्यू पॉइंट्स हैं उसी से रिलेटेड जो हमने पीछे बात की यहाँ पे सफिशिएंसी से रिलेटेड, सफिशिएंसी से रिलेटेड ही कंप्लीटनेस का हमारे पास फैक्टर है। कोहिजन, कोहिजन एक और हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, और कोहिजन से मुराद ये है कि कितना कोहिजिव है कोई भी आपका ऑब्जेक्ट कंपोनेंट किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसकी वर्किंग जो है वो कितनी वेल डिफाइंड है और उसी एक ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट के थ्रू उसको प्रॉपरली हैंडल किया जा रहा है। इसी तरह से जो है प्रिमिटिवनेस है, प्रिमिटिवनेस इज रिलेटेड टू द सिंप्लिसिटी, और इसके अंदर ये देखना होता है कि कितना जो है जो भी स्पेसिफिक कंपोनेंट या ऑब्जेक्ट है वो कितना अपनी नेचर के अंदर एटॉमिक है। कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन है कि उसने परफॉर्म करना है, कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है जिसको, तो टोटली उसी ही को उसको अचीव करना चाहिए या उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। इसी तरह से एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज सिमिलरिटी, और सिमिलरिटी जो है दैट इज डिग्री टू विच टू आर मोर क्लासेस आर सिमिलर, कितने आपस में एक से मिलते जुलते हैं इन टर्म्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, फंक्शन। इसको जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। ये सिमिलरिटी की कैरेक्टरिस्टिक है। और वॉलेटिलिटी क्या है कि कितना लाइकलीहुड है ऑफ पॉसिबल चेंज इन दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं या कंसीडर करनी चाहिए हमें। आज के लेक्चर को हम समराइज करते हैं। हमने अपनी बात स्टार्ट की मेजरमेंट के साथ। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर मेजरमेंट जो है वो एक की एलिमेंट है, और क्वालिटी असेसमेंट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है असेसमेंट से, डायरेक्टली रिलेटेड है मेजरमेंट से। सब्जेक्टिव क्वालिटी असेसमेंट भी हो सकती है, लेकिन
जब हम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हम क्वांटिटेटिव नेचर की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं। तो मेजरमेंट जो है, जो नंबर्स जो हैं वो हमें क्वालिटेटिव इस स्लाइड को दोबारा बोल रहा हूँ, समरी वाली। आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। हमने आज मेजरमेंट से बात स्टार्ट की। सारी जितनी भी डिफरेंट इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ हैं, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं, उसके अंदर मेजरमेंट जो है दैट इज़ की एलिमेंट, और इसका डायरेक्टली जो रिलेशनशिप है वो क्वालिटी असेसमेंट के साथ है। अगर हम क्वालिटी को क्वांटिटेटिव वे में जो है असेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी नीड सम नंबर्स, कोई इस तरह के हमें मैट्रिक्स चाहिए। और फिर हमने देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है दूसरे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स की तरह। इसमें क्योंकि एक तो नेचर इसकी डिफरेंट है दूसरे इंजीनियरिंग डोमेन से, और अगेन इसके अंदर उस तरह से मैट्रिक्स अवेलेबल नहीं है जितना थॉरो मैट्रिक्स या जितने थॉरो रूल्स और फार्मूलाज और लॉज जो हैं वो दूसरे इंजीनियरिंग डोमेन्स के अंदर अवेलेबल हैं। तो समहाउ हमारे पास कुछ ना कुछ मैट्रिक्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को असेस कर सकते हैं। फिर हमने इंटरनल फ्रेमवर्क को जो है वो उसको डिस्कस किया फॉर प्रोडक्ट मैट्रिक्स, और उसके अंदर सबसे पहले हमने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स। और फिर हमने की एक्टिविटीज़ को जो है प्रोडक्ट मैट्रिक के हवाले से उनको डिस्कस किया। द फर्स्ट वन इज़ द फार्मूलेशन ऑफ मैट्रिक्स। We need to come up with some sort of identification or indicators mechanism कि किसके थ्रू हम जो है वो मेजर करेंगे। सेकेंड की एक्टिविटी इज अ कलेक्शन, हाउ टू गैदर द डेटा। और फिर उसके बाद थर्ड एक्टिविटी इज द एनालिसिस। एनालिसिस इज द कंप्यूटेशन कैलकुलेशन ऑफ आर एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल टूल्स ऑन द गैदर डेटा। और फिर हमने इंटरप्रिटेशन जो है द फोर्थ एक्टिविटी। इंटरप्रिटेशन इज एक्चुअली द असेसमेंट और द वैल्यूएशन बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस। और फाइनली फीडबैक, और फीडबैक इज द काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस related to that product or product quality for the organization। और फिर इसके बाद हमने कुछ की प्रिंसिपल्स डिस्कस किए फॉर मेट्रिक कैरेक्टराइजेशन एंड वैलिडेशन, कि अगर ऐसा जो मेट्रिक जब हम डिफाइन करते हैं दैट मस्ट बी मीनिंगफुल, मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर हम उसको देख सकें और वो मैसेज कन्वे करना चाहिए। और फिर इसी तरह से उसको प्रॉपरली हमें वैलिडेट करना चाहिए, ना सिर्फ टॉय एग्जाम्पल के साथ बल्कि लार्ज स्केल के ऊपर विद वैरायटी ऑफ डेटा जो है उसको देखना चाहिए। एंड वंस इट इज वैलिडेटेड देन वी एक्चुअली कैन यूज इट इन अदर फॉर अदर एप्लीकेशंस। और फिर इसके बाद हमने बात की कि क्या मैट्रिक्स हो सकते हैं रिक्वायरमेंट्स मॉडल के अंदर, और उसके अंदर जो दो डिफरेंट तरह के मैट्रिक्स हमने डिस्कस किए। फर्स्ट वन वाज द फंक्शन बेस्ड मैट्रिक्स, और फंक्शन बेस्ड मैट्रिक्स के अंदर हमने बात की कि क्या नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स क्या हैं, एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स क्या हैं। और फिर इनके थ्रू हमने कहा कि इस नंबर के साथ साथ हमें उनको एक वेट फैक्टर भी साइन करना होता है, जिसको मैंने क्लासीफाई किया कि जी ये सिंपल है और ये एवरेज है और ये हाई है। तो इस तरह से जो है कम्प्लेक्स है। तो इसके साथ साथ फिर हमने कहा कि हमारे पास सम ऑफ f5 फंक्शन वैल्यूज़ होती हैं, और दैट वैल्यू एस्टिमेशन इज़ बेस्ड ऑन सम क्वेश्चंस और सम कंसिडरेशन रिलेटेड टू द एप्लीकेशन, कि क्या उसकी परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है, किस तरह से वो जो है किस इन्वायरमेंट के अंदर जो है एप्लीकेशन रन हो रही है, कितनी कुछ जो है इसकी और एप्लीकेशंस के साथ जो है कनेक्टिविटी है। तो इस तरह की डिफरेंट जो है क्वेश्चन या फैक्टर्स हो सकते हैं। बेस्ड ऑन दोज फैक्टर्स हम कुछ नंबर्स असाइन करते हैं, और फिर फाइनली हम क्या करते हैं, एक वैल्यू हमारे पास एक नंबर आता है, फाइनल वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू, और उसके थ्रू हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि साइज़ क्या होगा,
कितनी जो है ना नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, लाइन ऑफ कोड्स क्या होगा, कितने नंबर ऑफ एरर्स होंगे। तो इस तरह की जो है डिफरेंट हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। और फिर हमने स्पेसिफिकेशन क्वालिटी के हवाले से मैट्रिक्स को डिस्कस किया। पहले हमने डिस्कस किया कि रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन जो है वो कैसे हम कहते हैं कि ये ज़्यादा अच्छी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है कि उसके अंदर सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, वो टू द पॉइंट उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह से ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए। फिर हमने हाई क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन किया कि उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। और फिर उसके अंदर हमने मैट्रिक्स को देखा कि हम अगर टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स को कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स प्लस नंबर ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के थ्रू हम देख सकते हैं। अगर फिर हमने उसकी जो करेक्टनेस को या कंप्लीटनेस को देखना है तो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट आर अनएम्बिगुअस, जिसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया जाए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इससे आपको रिक्वायरमेंट्स की क्वालिटी का पता चलेगा, कंप्लीटनेस का पता चलेगा। और भी इसी तरह से हमने मैट्रिक्स को देखा। और फिर उसके बाद हमने डिज़ाइन मॉडल की बात की, और डिज़ाइन मॉडल के अंदर भी हमने कहा कि अनफॉर्चुनेटली सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के ऊपर जो है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टाइम के ऊपर वो कोई बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स को फॉलो नहीं किया जा सकता, कुछ उस तरह की क्वालिटी असेसमेंट्स नहीं होती जो कि होनी चाहिए। तो अब एक उसके अंदर जो पॉसिबल मैट्रिक्स हैं या टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट इज़ रिलेटेड टू द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अंदर जो है हमने बात की कि अगर आर्किटेक्चर जो स्ट्रक्चर है उसके थ्रू जो है हम नंबर ऑफ नोड्स एंड आर्क्स जो है वो कैलकुलेट करके उसके अंदर देख सकते हैं कि क्या डेंसिटी होगी कनेक्टिविटी की, या फिर हमने कहा कि उसकी डेटा कम्प्लेक्सिटी क्या है और उसकी जो है स्ट्रक्चर कम्प्लेक्सिटी क्या है, और फिर इससे ओवरऑल सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर आखिर में हमने बात की कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की तरफ आते हैं तो उसके लिए क्या मैट्रिक्स होने चाहिए, लेकिन उसके अंदर हमने की कैरेक्टरिस्टिक देखी दैट आर रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, और उसको हमने डिस्कस किया, जैसे सिंप्लिसिटी है, जैसे कोहेजन है, जैसे कपलिंग है। तो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम और ज़्यादा डिटेल के अंदर बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन से रिलेटेड जो मैट्रिक्स हैं उनके बारे में भी, और प्रोडक्ट मैट्रिक्स से रिलेटेड जो और की कंसेप्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।